morning class. We are going through chapter 2 from the Vistas, and the title of the chapter is The Tiger King. Children, this chapter is written by Kalki, and in this chapter the author tells us the story of the Tiger King. He is firmly determined to tell us the story of the Tiger King. In the previous lecture, we have read that when the Tiger King was born, all the astrologers from his kingdom came to the palace and foretold about him. They said that this child would become the warrior of warriors, hero of heroes, and champion of champions. But when the astrologers were compelled to complete their statement, so they continued that the Tiger King would surely one day मीट हिज डेथ. तो देखिए, जब टाइगर किंग का जन्म हुआ तो सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो उनके राज्य के जितने भी ज्योतिषी थे, वो महल आए और उन्होंने टाइगर किंग के बारे में भविष्यवाणी की, बताया कि ये बच्चा बड़ा होकर चैंपियन ऑफ चैंपियन, हीरो ऑफ हीरोज और वॉरियर ऑफ वॉरियर्स बनेगा. लेकिन इस बच्चे की एक न एक दिन मृत्यु होगी. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, व्हेन द एस्ट्रोलॉजर्स वर completing their statement and said that the Tiger King would meet his death one day. Now come to the next paragraph. So at that very moment a great miracle took place. तो देखिए, उस क्षण एक महान चमत्कार हुआ. A great miracle took place at that time. An astonishing phrase emerged from the lips of 10-day-old जिलानी जंगजंग बहादुर, ओ वाइज प्रॉफिट्स. तो देखिए, जब ज्योतिषियों ने, एस्ट्रोलॉजर्स ने टाइगर किंग के बारे में बताया कि टाइगर किंग की एक न एक दिन मृत्यु होगी, तो एक हैरान कर देने वाला वाक्य 10 दिन के जिलानी जंगजंग बहादुर के मुंह से निकला. The Tiger King was only 10 days old that time, and astonishing phrase emerged from his lips and start speaking. ठीक उसी क्षण एक महान चमत्कार हुआ और एक हैरान कर देने वाला वाक्य 10 दिन के जिलानी जंगजंग बहादुर के होठों से निकला और बोला, हे बुद्धिमान भविष्य वक्ताओं, ओ वाइज प्रॉफिट्स, ओ वाइज एस्ट्रोलॉजर्स. Everyone stood transfixed in stupefaction when the astrologers listened to these words, to the astonishing phrase. जब देखिए भविष्य वक्ताओं ने इस वाक्य को सुना, तो एकदम सभी को आश्चर्य हुआ. They looked widely at each other and blinked. So they started looking at each other and they started blinking. तो देखिए,
जब सभी एस्ट्रोलॉजर्स ने, भविष्य वक्ताओं ने उसकी बात सुनी तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने एक दूसरे को बड़े ध्यान से देखा और अपने पलकों को झपकाया। ओ वाइस prophets, it was I who spoke. Again the child spoke. दोबारा फिर वो बच्चा बोला, हे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, ये मैं हूँ जो बोला। This time there were no grounds for doubt. देखिए इस बार डाउट का कोई ग्राउंड नहीं था। There were no doubts about it. It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. देखिए इस बार शक का कोई आधार नहीं था। ये केवल 10 दिन पहले ही पैदा हुआ बच्चा था जिसने इतनी स्पष्ट तौर पर, स्पष्टता के साथ इन शब्दों का उच्चारण किया। The child was only 10 days old and started speaking. Not spoke, but spoke these words in clear pronunciation. The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. अब देखिए जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था वहाँ पर उसने अपने स्पेक्टिकल्स को उतारा और बच्चे की ओर बड़े ध्यान से देखा। He just took off his spectacles. The chief astrologer at once took off his spectacles and stared intently with astonishment at the baby. And again the baby spoke. All those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. अब देखिए जो रॉयल इन्फेंट था, जो शाही परिवार में जन्मा हुआ बच्चा था जिसका नाम बाद में टाइगर किंग पड़ा, उसने बिल्कुल स्पष्ट आवाज में एस्ट्रोलॉजर से इस बात को कहा कि ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। बोला वे सभी लोग जो पैदा हुए हैं उन्हें एक ना एक दिन मरना पड़ेगा और हमें ये जानने के लिए आपकी प्रेडिक्शन की आवश्यकता नहीं है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो अबाउट इट, बट देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। देखिए उसने बड़ा मीन्स एक चौंकाने वाला स्टेटमेंट कहा कि जिन लोगों ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, दोज हु आर बॉर्न ऑन दिस अर्थ दे विल हैव टू डाई समडे और द अदर, कि जिन लोगों का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है उन्हें एक न एक दिन मरना होगा और ये जानने के लिए हमें आपकी प्रेडिक्शन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप मरने का ढंग बता पाते तो कोई बात थी। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. The chief astrologer placed his finger on his nose. देखिए चीफ एस्ट्रोलॉजर ने बड़े आश्चर्य के साथ अपनी उंगली नाक पर रखी। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder, in astonishment. A baby barely 10 days old opens its lips in speech. Only 10 days old baby started speaking. वो बच्चा जिसका जन्म केवल 10 दिन पहले हुआ था वो बोलने लगा। Not only that, it also raises intelligent questions. Not only that, it also raises intelligent questions, wise questions.
केवल ये बोला ही नहीं बल्कि इसने समझदारी के प्रश्न भी पूछे। इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, इनक्रेडिबल, क्वाइट अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल, rather like the bulletins issued by the bar office themselves, and his words were just like the bulletins issued by the bar office. The chief astrologer took off his finger of his nose and fixed his eyes upon the little prince. अब देखिए चीफ एस्ट्रोलॉजर ने फिर द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज। अब चीफ एस्ट्रोलॉजर ने फिर अपने नाक से उंगली को हटाया एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और बड़े ध्यान से लिटिल प्रिंस की ओर देखा। And said, the prince was born in the hour of the bull. The bull and the tiger are enemies, therefore death comes from the tiger, he explained. अब देखिए उसने चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात को पूरा किया और बताया कि द प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, कि इस राजकुमार का जो जन्म है बुल आर में हुआ है, बुल के नक्षत्र में हुआ है। एंड द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और जो बुल और टाइगर हैं वो एक दूसरे के एनिमीज हैं, शत्रु हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड। एंड फाइनली ही एक्सप्लेन्ड दैट द टाइगर वुड बी द कॉज ऑफ हिज डेथ, और फाइनली उसने एक्सप्लेन किया कि टाइगर ही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। टाइगर की वजह से ही इसकी मृत्यु होगी। डेथ वुड कम फ्रॉम द टाइगर। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू ए क्वैक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। कहता है आप सोच सकते हैं कि जो क्राउन प्रिंस जिसका नाम जंगजंग बहादुर था, क्या वो टाइगर शब्द सुनकर कांप उठा, हिल गया? That was exactly what did not happen. वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. जैसे ही उसने इस बात को सुना तो जो प्रिंस था, जो क्राउन प्रिंस था, उसने वो गुर्राया और उसकी होठों से चौंकाने वाले शब्द निकले, आतंकित करने वाले शब्द उसके होठों से निकले और बोला लेट टाइगर्स बी वेयर, बोले टाइगर्स को सावधान कर दीजिए। दिस अकाउंट इज ओनली ए रूमर राइफ इन पतवनपुरम। ये वर्णन पतवनपुरम में एक रूमर के समान फैल गया, अफवाह के समान फैल गया। बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। परंतु जो कुछ घटित हुआ उससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये थोड़ी सच्चाई पर आधारित था। इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। ओके स्टूडेंट्स, सो वी शैल गो थ्रू द नेक्स्ट lecture in the next video. Thank you.